Good evening, everyone. Hello. Good evening, ma'am. Good Good evening, evening, ma'am. sir. Okay, I'll wait for only 1 minute more and then we will start with the new institution जैसे हमने WTO किया था. Today we will start with the International only about the arranging the trades, regulating the trades. But IMF is quite a bigger institution as compared to the WTO. So let's begin with International Monetary Fund. First of all, when it comes to any institution, whether it is the Reserve Bank of India or whether it is IRDAI or any institution established by government of India or anyone, first of all, we should understand the functions. And functions and objective are same. Okay, so ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि ये इंस्टीट्यूशन क्यों बनाई गई, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. एंड फंक्शंस का मतलब होता है कि ये इंस्टीट्यूशन काम क्या करेगी. So even in the paper, if somebody asks you about the objectives of the IMF or the functions of the IMF, you have to write the same answer. Okay. So कई बार आपने टीवी पे डॉक्यूमेंट्रीज में आईएमएफ का नाम सुना होगा. इवन द आईएमएफ नेम वाज वेरी मच हाइलाइटेड when the economist originated from Kerala became the chief economist advisor at IMF. I guess her name is Gopi Krishnan or something like that. So we should feel proud that current chief economic advisor is Indian. Even the previous the previous RBI's governor, Raghuram Rajan, was also holding the position of chief economic advisor at IMF. In fact, at the request of Honorable Dr. Manmohan Singh, he left the IMF position to serve the India as a governor of RBI. So now let's come back to functions of International Monetary Fund. The first foremost function is determining the rate of exchange by every country. Now you Hello, are ma'am. very much aware. Yeah, मॅम आवाज yes. येत नाही व्यवस्थित. जरा जोरात बोला ना. आवाज येत नहीं है. हाँ Okay. मैम, बहुत Uh, बढ़िया आ रही है। एकदम. okay. Now am I audible? Yes, ma'am. Now yeah. Okay. So the thing is, the first and foremost function of the IMF is to determine the rate of exchange in every country. आपको तो पता है हर एक कंट्री का अलग अलग करेंसी है. If we talk about India, it's rupees. USA का डॉलर है. जापानीज का कौन सा है भाई? जापान का कौन सा है? येन होगा, येन। जापान का येन है. Okay, I guess we have to conduct some task on the currencies as well, क्योंकि जब institutions सारे खत्म हो जाएंगी, we are going to land up on the next chapter of foreign exchanges and how one define the foreign exchange rate. So first of all, IMF play a dominant role in determining the rate of exchange of every country
when your country is registering itself in the IMF institution, जैसे आप एनरोल करते हो अपना नाम MBA के लिए, वैसे ही हर कंट्री को अपना नाम रजिस्टर करना पड़ता है, बट बिफोर दैट यू हैव टू क्वालिफाई इट। जैसे आपने MBA करने के लिए CET दी या आत्मा दी, whatever एग्जाम्स you मैट दी, whatever एग्जाम्स you have given, then only you are eligible to appear to get the admission। उसी तरह हर एक कंट्री का भी एक एलिजिबल क्राइटेरिया है, and if your country is fulfilling criteria, then only you can registered as a member of the IMF। सो जब आप IMF में रजिस्टर हो जाते हो, तो आपके कंट्री का जिनके जिनके साथ ट्रेडिंग चल रहा है, सो दो कंट्रीज के करेंसी के बीच IMF हेल्प्स टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। दूसरा है, इफ एनी मेंबर कंट्री इज इन नीड ऑफ द लोन बट इनटू द फॉरेन करेंसी, मतलब आप हमारे इंडिया की करेंसी है रुपीज, एंड इफ यू वांट अ लोन in dollars, as if we are running out of the reserve of the dollars, हमारे पास डॉलर ही नहीं है, and we want to import something from USA, तो definitely USA रुपीज तो एक्सेप्ट नहीं करेगा जो हम कुछ import कर रहे हैं उसके लिए। then at that time if we are needing some foreign currency, मतलब if you want loan in US in dollar, then IMF can provide such a loan। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन करेंसी, अभी ऊपर तो लिखा था डिटर्मिनेशन, अभी नीचे आया रेस्ट्रिक्शन। आपको पता होगा कि जब भी इन्फ्लेशन एक इसको कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन, मतलब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है एंड इफ द इंक्रीज रेट और ग्रोथ रेट इन द इन्फ्लेशन इज बियॉन्ड द लिमिट्स, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम उसके फॉरेन करेंसी में, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट में आता है। एंड फॉर दैट वी कैन हैव अ गुड एग्जांपल ऑफ ग्रीस। उसके बाद है जिम्बाब्वे, मतलब जोक में वहां पे कहा करते थे कि अगर आपको एक ब्रेड भी लेना है ना, तो आपको ट्रक भर के जिम्बाब्वे की लोकल करेंसी ले जानी पड़ती थी, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री ऑल्सो। तो तब IMF ने ऐसा सजेस्ट किया कि जिम्बाब्वे will demolish their existing local currency, and now Zimbabwe has shifted to the one currency, dominant currency, that is US dollar। This can be a new type or new form of colonization, मतलब जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, वैसे ही एक प्रकार का ये एक colonization हो सकता है when you are changing your own currency and when you are accepting the dominant country's currency। दूसरी बात है बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स। जब हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था या कहीं पे भी पढ़ा था कि हमारे इंडिया की सारे बैंक्स की बैंक कौन सी है, तो RBI है। RBI हैज एवरी ऑथोरिटी टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ बैंक। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो हर एक कंट्री की सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक को भी एडवाइस देने का काम IMF करती है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि IMF विल रेगुलेट सेंट्रल बैंक्स, यहाँ पे ये कह रही हूँ कि इन केस एनी रिक्वायरमेंट IMF विल गाइड द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। बाद में फंक्शन आता है टेक्निकल असिस्टेंस। टेक्निकल असिस्टेंस मतलब IMF का पहला फॉरमोस्ट काम रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अभी ये चीज हमने सीखी नहीं है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक सिंपल सी बात बताती हूँ आपको कि बैलेंस ऑफ पेमेंट समझने का आसान तरीका कौन सा है। गाइस, मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग समवेयर एज एन परमानेंट एम्प्लॉय और एज एन इंटर्न, तो हर महीने आपको एक सैलरी आती है। चलो मान लो आपको 20,000 रुपए मिल रहे हैं, राइट, और उस महीने का खर्चा हुआ 15,000, मतलब इनकम था 20,000, आपने खर्चा किया 15,000, तो आपके पास सरप्लस कितनी अमाउंट रह गई? हाउ मच यू आर हैविंग इन योर पॉकेट? 5,000 rupees. 5,000 rupees. 5,000 rupees।
सो बैलेंस मतलब इकोनॉमिकल वर्ल्ड में ये टर्म को कहते हैं सरप्लस. Income is more than the expense is called surplus and it's a very favorable situation. दूसरी सिचुएशन लेते हैं, अगले महीने क्या हुआ, आपको ट्यूशन फीस भरनी पड़ी, ये खर्चा उठाना पड़ा. सो आपका सैलरी तो था 20,000 रुपए, बट बहुत सारे एक्सपेंसेस आने से आपका थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया बजट. यू हैव टू स्पेंड 25,000. अभी सैलरी तो मैम हमारी है 20,000, तो शायद 5,000 आपने बैंक से उधार लिया या अपने मम्मी पापा से उधार लिया. Now this is a worse situation. When your expenditure is greater than the income, it is called deficit in the economics. अभी बात समझ में आ गई आपको सरप्लस और डेफिसिट. जैसे हमने हमारी बात की, सैलरी बेस्ड बात की, वैसे ही हर एक कंट्री का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते हैं. So when country's income is greater than its expenditure, then it is called the balance of payment, BOP, is in surplus situation. But when we are having the reverse scenario, when the expenses are greater than the income, it is called deficit. So आपने कई बार अभी भी इकोनॉमिक टाइम्स में या बिजनेस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि इंडिया इज गोइंग थ्रू द डेफिसिट. डेफिसिट 4% डेफिसिट. इसका मतलब क्या है, अगर 100 रुपए का इनकम है तो 103 105 रुपए हमारा खर्चा है, which is good when you are a developing country. मतलब it shows that you are spending more. But when you become developed country, ideally your balance of payment should show the surplus. And let me tell you guys, Germany is the only country in the world which is having the surplus balance of payment. And even you may feel that USA is very much developed country, even the USA is not having the surplus balance of payment, but even USA is having the deficit in their balance of payment. You will feel uh, astonished. USA has taken loan of almost 3 times of their GDP. Yes, USA has also taken a loan from IMF almost 3 times of their GDP. And now if really Trump wants to create jobs in USA, he has to apply for more loan, and where he will need a technical assistance how to raise the loan. And when he has gone through जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे ही वहाँ पे एक डिक्लेरेशन रहता है, डिक्लेरेशन है, उसमें उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि if any government wants to raise a loan beyond the 3 times of the GDP, they have to amend the constitution itself. And that is a huge challenge in the USA. So for that also IMF is very much assisting USA currently. दूसरा function है training. Yes, IMF is in also training. Previously, the training activity was limited to their projects, was limited to their workshop. Sorry But to due to interrupt. hello, hello, Yes, ma'am. Karan here. Hello. I guess you have the connectivity issue at your end because we are having your robotic voice. Please check your connectivity. Audible right now? Hello. Hello, am I audible right now? Yeah, now you are audible. Yeah, am I Yes. audible right now? Yeah, now you are audible. Yeah, actually, I wanted to ask that you said that US has taken loan Yeah. 3 times more than their Yes. GDP. But yeah, but means actually in lockdown, generally I had heard that for every citizen of USA, Trump had given a certain amount every month. $1,000. $1,000. Yes. $1,000 Per household he was per giving. month. Yes. Yeah. Right. Yes. So means what was that then? Taking a loan and again distributing in citizen also.
See, basically, he had stopped the funding of WHO. WHO was Right. almost 47% funded by the USA itself. So generally, they release the payment in the month of February and March, and at that same time, he stopped this payment. So whatever you are asking, he is as if he is taking the loan and distributing among the people. It's not like that, and that is the main No, reason. no, not like that. Yeah, I'm telling you that is the main reason why he has stopped the funding, because he has directly distributed the money into the account of the citizens. Okay. Okay. And even in India, आपने कई बार क्रिटिसिज्म भी देखा होगा कि जो आत्मनिर्भर पॉलिसी 6 दिन वो डिक्लेयर कर रहे थे, उसमें Right. ज्यादा इम्प्रेशन या ज्यादा जोर लोन देने पर था. Right. यूनिवर्सल इनकम इंडिया ने डिक्लेयर ही नहीं किया कि भाई आपका लॉकडाउन से जो नुकसान हुआ है, चलो भाई आपको 6,000 रुपए आपके अकाउंट में देते हैं. जो अभिजीत बैनर्जी पिछले साल के नोबेल लॉरेट है, ओके, हु हैज प्रमोटेड द यूनिवर्सल इनकम फॉर पुअर, वो इंडिया Right. ने नहीं किया. इस पर बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब आई फील वेरी सॉरी कि वी डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी. कहाँ से देंगे हम? मतलब जो मजदूर की हालत है ना बेटा, वही इंडिया की हालत है. अगर काम किया तो घर जाने के वक्त हम दाल आटा लेके जा सकते हैं, नहीं किया तो भूखे पेट सोना पड़ेगा. Okay. आर यू गेटिंग इट? Yeah, I know that few policies have been turned into granting of Right. loan schemes. And Okay. No, it's and yesterday even beta I have read one scholarly paper. वहां पे लिखा है कि even though the loan facilities have given, 47% industrialists have utilized it. मतलब ऐसा yeah, right. नहीं है कि किसी ने उसका लाभ उठाया ही नहीं. नो, No, already अगर disbursed हुए हैं 40, बहुत सारे लोन. हाँ 47% लोन अगर डिसबर्स्ड हुए, मतलब maybe within 2 months, 3 months, they will definitely generate an employment. And let's pray that by November and December we will get back to the normal life, having the good rate of employment, जो अभी बहुत ही ज्यादा कम है. अगर कम है, right. employment है तो salary नहीं है, ऐसा बहुत कुछ हुआ है. And whatever the economical losses every uh, country is facing, IMF also distribute some money. जैसे 2008 में जो सबप्राइम क्राइसिस हुआ था, तब IMF ने अराउंड $182 बिलियन, Funding सॉरी दिया था. 182 स्पेशल SDR कहते हैं उसको, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, हर एक कंट्री को दिया था विच इज अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल क्राइसिस. सो ऐसा IMF काम करती है. अभी मैंने नेक्स्ट पॉइंट भी क्लियर किया, फैसिलिटीज ड्यूरिंग द इमरजेंसी. द फंड प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर international consultation also. In the last year, during June 19 to November 19, we were constantly talking, listening about the hot topics regarding the China and USA trade. सही बात है ना? एक बार चाइना कह रहा है बहुत बढ़िया है हमारा रिलेशन, दूसरी बार ट्रम्प कह रहा है कि नहीं नहीं, वी आर गोइंग टू एंड अप द ट्रेडिंग पॉलिसी विद द चाइना. उसकी वजह से सिर्फ यूएसए और चाइना के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता. हमने परसों ही देखा The कि world. इवन इंडिया इज हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बिजनेस with the China. So at such point, IMF also provide some consultation for both the countries, as both the countries are the members of IMF. कैसा होता है ना कि इट्स नॉट इजी कि टीवी ऑन किया और मैच चल रही है तो हम जैसे कमेंट्स कर देना, अरे धोनी 6 मार या विकेट ले. नो, इतना इजी भी नहीं रहता व्हेन टू कंट्रीज आर नेगोशिएटिंग विद ईच अदर. ये सिर्फ दो कंट्रीज के सेक्रेटरीज क्या सोचते हैं, पॉलिटिशियंस क्या सोचते हैं, इसके अलावा जो जो पूरे वर्ल्ड में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या सोचती है, ये भी देखना पड़ता है. इसलिए आपको कई बार लगा होगा कि ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड डिसीजन क्यों नहीं लेते. नो, वी आर अकाउंटेबल टू गिव आंसर फॉर ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन वेयर वी आर द मेंबर्स. Is that clear to you guys?
Hello. Yes, ma'am. And Hello. the last function is the exchange stability. मतलब कहीं पे भी अगर इन्फ्लेशन बढ़ा है, इन्फ्लेशन कम है, या कोई इकोनॉमिकल इवोल्यूशन हो रहा है, IMF ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द एक्सचेंज स्टेबिलिटी. और वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज नहीं है तो इम्पोर्टिंग कंट्रीज हैज टू सफर अ लॉट. और इम्पोर्टिंग कंट्रीज कौन सी रहती है? ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज ही रहती है. एंड इफ द इम्पोर्टिंग कंट्रीज आर गेटिंग द प्रोडक्ट्स एट द हायर रेट, उसकी वजह से उनका कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ सकता है और वापस घूम के फिर IMF को पैसा देना पड़ेगा. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट. और नेक्स्ट फंक्शन है एड टू मेंबर कंट्रीज ड्यूरिंग द इमरजेंसी. मतलब अगर इमरजेंसी है कौन सी भी, तो IMF सीधा सीधा पैसा उठाकर उस कंट्री को एज अ लोन देती है. डू वी हैव एनी रियल टाइम सिचुएशन? Purposefully, I have written the funds provided by the IMF for short-term BOP position and for not to not other country but to India only. आपने कई बार सुना होगा कि in 1991 was the year of the evolution, was the year of the change, when we have opened the gates for the other country. Before 1991, we were the closed economy, and after 1991, we become the open economy. But what was the reason that we have suddenly changed our policies, trade policies? The reason was in 1991, we ran out of the foreign exchange reserve. मतलब हमारे पास, इंडिया के पास सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर ही रिजर्व था. और वो कितना था? मतलब यू मे आर्ग्यू विथ मी मैम, 1.2 बिलियन डॉलर्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंट्री. और वो सिर्फ 3 महीने के इम्पोर्ट को जितना पैसा लगता है ना, 3 वीक के, महीना भी नहीं, 3 वीक के इम्पोर्ट को जितना पैसा लगता है ना, उतना ही था. एंड जस्ट इमेजिन गाइज, अगर हमने IMF से लोन नहीं लिया होता तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री बंद पड़ जाती. सो गवर्नमेंट requested IMF to grant a loan of 2.2 billion dollars. बट जब आप लोन देते हो तब आपको कुछ हाइपोथिकेशन में देना पड़ता है. एट दैट टाइम RBI एयरलिफ्टेड 67 टन्स ऑफ गोल्ड. टन मतलब कितने केजीज पता है आपको? एनी गेसेस? एज हाइपोथिकेशन के लिए RBI ने 1000 kg. एग्जैक्टली 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg. इसका मतलब इतना लोन लेने के लिए हमने 67,000 kgs का गोल्ड एयरलिफ्ट किया. 47 kgs का गोल्ड गया बैंक ऑफ इंग्लैंड में. 20 टन्स का गोल्ड डिपॉजिट किया स्विट्जरलैंड में, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में. तब IMF ने हमें 2.2 बिलियन डॉलर्स एज अ लोन दिया. But it's not the cakewalk for India. When IMF became ready to give us loan, they have put forward certain condition that that being an Indian, we have to accept it. Otherwise, IMF ने लोन दिया ही नहीं होता. तो इंडिया ने लोन लेने के लिए कौन से कंडीशन एक्सेप्ट किए? फर्स्ट, ओपन डोर टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट. मतलब FDI को हमने वेलकम किया. FDI को वेलकम किया मतलब फॉरेन कंपनीज को हमने वेलकम किया. फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को हमने वेलकम किया. वी हैव स्टार्टेड परचेसिंग द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द फॉरेन कंपनीज. उनको यहाँ पे फैक्ट्री खोलने के लिए इजाजत दी. रिड्यूस द रेड टेप.
रेड टेप का मतलब आपको अभी समझ में आया होगा। परसों ही लास्ट लेक्चर में ही हमने एंटी डंपिंग एंड बहुत सारी चीजें देखी। एंड इन 1991 में तो इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ही ज्यादा रहती थी। मतलब अगर $100 की का प्रोडक्ट है, उस पर 100% शायद इम्पोर्ट ड्यूटी रहती थी, तो वो $100 का प्रोडक्ट हमें $200 में परचेस करना पड़ता था। उसको कहते हैं रेड टेप पॉलिसी, कि बाहर की कंपनी सोचे भी ना इंडिया में एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन अगर लोन चाहिए तो बाहर के कंपनी को आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी इतनी स्ट्रीमलाइन नहीं थी कि आज आप देखते हो मेक इन इंडिया, हैप्पी प्लेस फॉर डूइंग बिजनेस, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेज फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द बिजनेस। ये सारी जो पॉलिसीज है ना, वो 1991 के बाद धीरे 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 आने लगी इंडिया में। पहले गाइस आपको एक कंपनी डालनी है ना, तो इट यूज टू टेक अराउंड 6 months। बेटर 1992 की बात है, जब नारायण मूर्ति wanted to purchase one simple personal computer, and he has requested to some I just forgot the name, but he has just requested uh, to have a permission, कुछ 256 MB का कंप्यूटर था, वो उनको डबल रैम का चाहिए था, 512 MB। गाइज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एरा ऑफ 2020 जहां हमारा मोबाइल फोन ही 3 GB 4 GB रैम का है। दैट वाज अ एरा कि जहाँ पे इंटरनेट क्या है पता भी नहीं था, कंप्यूटर क्या है पता भी नहीं था नॉर्मल इंडिविजुअल्स को। गाइज सिर्फ एक कंप्यूटर की परमिशन डबल रैम की उन्हें ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद मिली। अभी आप सोचो उनका जो प्रोजेक्ट था वो कितना हैम्पर हुआ होगा, and due to which many foreign companies were not interested in entering into the India. But due to this condition, India has to change their policies, और उसका रिजल्ट भी हमें मिला। 6 महीने में हमारा जो डेफिसिट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में। एंड द ऑल क्रेडिट वी शुड गिव टू ऑनरेबल मोस्ट ब्रिलियंट फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज जो देश खड़ा है ना, वी शुड थैंक देम कि at that time he was leading the finance ministry, and he saved the country from bankruptcy. He really saved the country from bankruptcy, and he started initiating lots of new policies to liberalize the economy, और उसकी वजह से ही we are enjoying lots of benefits, financial digital movements, we are really enjoying. So thank you to Manmohan Singh for this. ये तो बात चल रही थी IMF ने लोन भी दिया और कंडीशंस भी कौन से डाले हम पे ऊपर while helping और granting the loan। लेकिन ये IMF चलता कैसे है भाई? IMF के 2 गवर्नर रहते हैं, एक मेन गवर्नर रहता है, दूसरा रहता है अल्टरनेट गवर्नर। मतलब जितने कंट्रीज के मेंबर्स हैं, हर एक कंट्री का एक गवर्नर रहेगा, और हर एक कंट्रीज के गवर्नर के ऊपर एक सुप्रीम गवर्नर रहेगा, और ये बोर्ड ऑफ गवर्नर 1 साल में एक बार मिलते हैं। तो डेली एक्टिविटी कैसे चलती है? डेली एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं 21 डायरेक्टर्स। उसमें से 7 जो डायरेक्टर्स है उनके डेजिग्नेशन परमानेंट है, और बाकी के जो 14 डायरेक्टर्स हैं उनको बाय इलेक्शन बनना पड़ता है। तो 7 परमानेंट कौन से हो गए? सिंपल सी बात है, जिन 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 कंट्रीज ने ज्यादा से ज्यादा पैसा IMF को दिया है, उसमें है यूनाइटेड स्टेट, जापान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, इटली एंड सऊदी अरेबिया। Yes, India is not having permanent directorship in IMF, but India always get elected member, elected director among the 14,
as we as a in a larger amount, so we are not having the largest quota to become the permanent member. So now कई अभी जो मैं बोल रही हूँ कि IMF ने लोन दिया ऐसा किया, लेकिन इस IMF को पैसा कहाँ से मिला? IMF को पैसा मिला मेंबर कंट्रीज से ही। जो मेंबर कंट्रीज है वो कुछ ना कुछ अमाउंट हमेशा डिपॉजिट करते रहते हैं, और आपने अभी भी देखा कि परमानेंट मेंबर में बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो उनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज भी होंगी। इसीलिए टू अवॉइड द क्लैशेस, टू अवॉइड द एम्बिग्यूटी, इन्होंने एक स्पेशल ड्राइंग राइट लाया, उसको कहा SDR। ये SDR कोई करेंसी भी नहीं है या क्लेम नहीं है। यू कैन से SDR is a right to withdraw money from IMF. So it's a potential claim कि अगर आपके कंट्रीज को जरूरत लगी तो ही आप इस SDR से SDR यूज करके पैसा निकाल सकते हो। Right now, how much SDR is IMF having? So अभी IMF में 204 बिलियन SDR है, which is equal to around $281 billion. So you, in simple words, you can say that कि SDR is a unit of measurement which IMF uses for recording its accounts. So how IMF has built its capital source? अभी तक तो हर एक कंट्री ने 25% एज अ रिजर्व कंट्रीब्यूट किया है, बट दिस कोटा कैन बी एडजस्टेड आफ्टर एवरी 5 years. सो आफ्टर एवरी 5 years ये कोटा कम ज्यादा हो सकता है। अभी तक तो अमेरिका हैज गिवन अ ह्यूज फंड, उस 25% में कम ज्यादा विड्रॉ करके, कई बार डिपॉजिट करके अमेरिका का कोटा हो गया है 17.7, एंड स्टिल इट इज अ लार्जेस्ट कोटा। मतलब जब IMF फॉर्म हेलो हुई थी, IMF जब फॉर्म हुई थी एक्सक्यूज मी मैम 1947 में, या मैम ये जो 25% जो नंबर है ये फिक्स कोटा है हर एक कंट्री के लिए नहीं मतलब? नहीं, वही बता रही थी मैं, वही बता रही थी। जब IMF फॉर्म हुई थी तो 25% का कोटा 4 कंट्रीज ने दिया था, लेकिन जैसे नंबर ऑफ कंट्रीज बढ़ती गई वैसे ये कोटा एडजस्ट होने लगा आफ्टर एवरी 5 years। कई बार जिस कंट्री ने डिपॉजिट किया है उन्होंने लोन भी लिया तो उनका कोटा कम हो गया, एंड ऐसे आफ्टर हैविंग n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, राइट नाउ अमेरिका का कोटा कितना है? 17.7%. So now this is about the IMF, but we need to understand also, apart from giving trainings, apart from rendering all the services, IMF is having a good data of the countries around the world. So I have already presented the IMF data mapper before you. So let's click on it. कौन सा हेलो डेटा हमें मैम, करण यार। यस करण बेटा। मैम मुझे एक छोटा सा ऐसा डाउट था कि आपने जैसे बोला कि जैसे इंडिया ने फॉर एग्जांपल लोन लिया, बाकी के कंट्रीज IMF से लोन लेती है, जी तो जी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बैंक में जाते हैं, वी टेक अ लोन, जी तो हम लोग कुछ तो ऐसे गिरवी रखते हैं, जी। राइट? सो सिमिलरली every country need to keep anything against that loan? यस मैंने वही कहा ना कि जब हमने लोन लिया ओके, तो हमने अराउंड 67 टन्स ऑफ गोल्ड हाँ, एयरलिफ्ट किया था, गोल्ड में एंड रखा है, हाँ, गोल्ड रखा था 67 टन्स, मतलब as a 67,000 security. kg एज अ सिक्योरिटी। 67,000 kgs,
Yeah, as a हाँ for ये मुझे आया ध्यान में, hypothecation. बट अभी मुझे मॉर्गेज क्या रखना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ तो। बट Correct. Yes, Karan. मुझे एक्चुअली क्या पूछना है कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे मतलब आपका सवाल क्या है? रिसेंटली हाँ. मैंने रिसेंटली नहीं बहुत हाँ नहीं ये मुझे एक डाउट था, एक क्लियर हो गया इसमें। और एक ऐसा क्वेश्चन था कि जब कांग्रेस जी. एक्चुअली वाज इन फॉर्मेशन, जब मनमोहन सिंह जी हाँ. ने एफडीआई पॉलिसी लॉन्च की, जी. एट दैट टाइम बहुत सारे मतलब आईएमएफ से तब अपने को बहुत सारा फंडिंग आया था। जी. जी. हेलो, राइट? हाँ हाँ सुन रही हूँ मैं. ऐसे हाँ मतलब जी. मैंने जस्ट कहीं रीड मैंने किया था कि कांग्रेस के जो इंटरनल मिनिस्ट्रीज है वहां पे वो जी. बहुत सारा लोन यूटिलाइज हुआ, रादर यूटिलाइजिंग फॉर द कंट्री। अभी ऐसे इसमें अगर ये मतलब इंडिया पे अगर लोन है तो हाँ. हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे? You and me. ओके, सो इट्स द बेसिकली सिटीजन। You नो and दैट me. पॉइंट इज राइट, मैं इसके लिए तो पूछ रहा हूँ ना मैंने, बिकॉज See, बीच में जो मैंने कहीं कहीं रीड किया था ना, हाँ. See, I will tell तो you, उसमें मैंने Karan, देखा था। if you are really interested, na, you should read one book by John J.M. Keynes, that is a general theory of interest and employment. I will send you that PDF. तो वहाँ पे या फाइन एक बहुत बढ़िया उन्होंने कहा है कि इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड. तो गवर्नमेंट क्या करती राइट। है? अभी जरूरत है, लोन लो. इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड. आर यू गेटिंग इट? सो लोन अभी जो एक्चुअली अपने citizens तक आना चाहिए ना। हाँ हमारे ऊपर का लोन है, तो वो हमारी जो दूसरी तीसरी आने वाली पीढ़ी है वो रीपे They करेगी. would suffer. हाँ, Yeah, दे वुड right. सफर. तो गवर्नमेंट Because इतना लंबा नहीं सोचता. आपको और एक फनी चीज बताती yeah, हूँ कि 1940s में जब वी वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्वीन से बहुत बड़ा लोन लिया था टू डेवलप एंड कंस्ट्रक्ट रोड्स इन इंडिया. ओके. India, right, हाँ, तो वो बनाए नहीं right. बनाए ये बात अलग. बट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वर रीपेइंग दैट लोन टू द क्वीन अप टू 1985, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो थे ना Right. कि इंडिया ने लोन लिया. अभी वो यूटिलाइज कैसे हुआ, एनपीए हुआ नहीं हुआ, रोड्स बने नहीं बने, दैट इज योर क्वेश्चन. मैंने तो लोन दिया है, आपको देना पड़ेगा. Ma'am, and we pay हाँ. them. We pay them in the form of taxes. Yes, in the form of taxes only. So that is the reason we should be very much aware कि पैसा कैसा खर्च हो रहा है. Ma'am, and if we don't That pay is the the main India is taxes, the highest tax-paying country, I guess. See, no, You we are have not to, the highest. Krishna, you have to pay the tax. तो आपको फेसलेस आ Highest रही है मतलब ना अभी highest मोदी की से. counting में हम लोग आते हैं ना। हाँ, काउंटिंग में आते हैं, बट इवन वी हैव अ वेरी लोअर टैक्स रेट, क्योंकि हमें इतने फैसिलिटीज भी नहीं मिलती. जैसे आप इंश्योरेंस आप खुद का निकालते हो, बट इफ यू स्टडी द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द कनाडा, देयर यू विल फाइंड कि पीपल आर पेइंग अराउंड 67% ऑफ देयर इनकम एज अ टैक्स. बट उनको कुछ खर्चा ही नहीं है. मतलब दे डोंट हैव टू वरी अबाउट their medical expenses. They don't Government have to worry मैम about their old age उतना also. मतलब आपको right because तो उतना कुछ support करता ही कर रही नहीं. है ना। एग्जैक्टली करण, ma'am, आप ma'am, taxes are on the salary only, ma'am. सैलरी, और आप क्यों That's the परेशान होते हो? reason. क्यों? मैं सिंपल चीज पूछती हूँ बच्चों, आप क्यों परेशान होते हो? आप क्यों पढ़ते हो? आपको नौकरी क्यों चाहिए? बिकॉज यू आर वरीड अबाउट योर फ्यूचर, कि अगर आपने नेक्स्ट 30 साल में नहीं कमाया तो आपका ओल्ड एज अच्छा नहीं जाएगा.